Chinay, Jai Sachidanand, independent. Jai Sachidanand, Rajni Dada. Okay. Chinay. हाँ, जय सच्चिदानंद। हमें केवा पुण्यशाली, हमें केवा पुण्यशाली, भगवान ने भूमिका आदे हैं मैं निहारी, भगवान की भूमिका आदे हैं मैं निहारी, हमें केवा भाग्यशाली, हमें केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति में जावी पाड़ी, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति में जावी पाड़ी, हमें केवा पुण्यशाली, हमें केवा पुण्यशाली, आगम स्वरूप धाम ए मार्ग मुक्ति नो छे, आगम स्वरूप धाम ए मार्ग मुक्ति नो छे, सत्य क्रमाशमाओ आषाढ़ शुद्धिनो छे, सत्य क्रमाशमाओ आषाढ़ શુદ્ધિનો છે, आषाढ़ शुद्धिनो छे, आषाढ़ शुद्धिनो छे, वादानी गच्छ काशं, वादानी गच्छ काशं, अज्ञान मान्यताओं एने दीरी उड़ावी, अज्ञान मान्यताओं एने दीरी उड़ावी, हमें केवा पुण्यशाली, हमें केवा पुण्यशाली, हमें केवा भाग्यशाली, हमें केवा भाग्यशाली, जय सच्चिदानंद। ओ आज तो जल्दी खत्म हो गया। ओके, वेरी गुड। तो आज कौन है? दो ही है। ओके, तो नंबर 1 तोरल है आज। तो तोरल नंबर 1 2 3 4। હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી પરમ શક્તિ ન દુભાવાય એવી દુભાવા પ્રત્યે અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો.
હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશ સાધુ સાધી આચાર્યનો અવરવાન અપરાધ અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારે પણ ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે નાનું મોડાય એવી પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Yeah, number 4. You finished 4. Okay, number 5 is सब आता है 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 अभी मैं लर्न कर. Okay, कल कर रहेगा. Okay, नवनीत दीदी. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા ચંતીલી ભાષા ન બોલાય ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા ચંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિ આપો. श्रेया दीदी. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ વગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો ઈચ્છાઓ ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. चिनाई. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુધપણો ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. दश. मुझे आज नहीं 8वीं कलम क्यों? तो के मुझको खुशी अहमदाबाद. यो आपको सब होना मांगता है. ओके, हाँ. खुशी अहमदाबाद. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈ નોય કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ અપરાધ અવિનય ન કરાય ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. श्रेया. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. प्रदीप दादा जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. मंत्र बुलाइए प्लीज. ओके. नमो वितरागाय नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम नमो નમો અરિહંતાણમ नमो सिद्धाणम નમો સિદ્ધાણમ नमो आयरियाणम નમો આયરિયાણમ नमो उवज्जायाणम नमो વજ્જાયાણમ नमो लोए सव साहुणम નમો લોકે સવ સાહુણમ ऐसो पंचन मुक्कारो એસો પંચનમુક્કારો सव पावपणासणो સર્વપાવપણાશણો मंगलाणम च सव्वेसीम મંગળાણં ચ સૌવેસિં परमं हवै मंगलम વૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नवनीत दीदी. हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी.
मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरे प्राप्त मन वचन का और मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे। ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। प्राप्त मन वचन काया और अपनी आत्मा का हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे धैर्य को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। टोरल स्टडी प्रेयर आता है आपको? मैं देख के बोलूं चलेगा? ओके बोलो। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आ रहे हैं, जो अंतराय आ रहे हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी का मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए, मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके दक्ष। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, के बच्चे, हम हैं आपके हे सच्चे, दिल से सच्चे, फिर भी कच्चे दिल भी है कच्चे, भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे दक्ष। दक्ष क्या ध्यान नहीं है? थैंक यू टोरल फॉर हेल्पिंग दक्ष भाई। नहीं दक्ष, क्या हो गया आज? आज मैं आ नहीं रही थी थोड़ी सी। ओके ओके श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, શ્રેયા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, શ્રેયા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, શ્રેયા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. दक्ष हे राधा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। हे राधा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। हे राधा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हम बोलते हे शुद्धात्मा दादा भगवान। बोलो। ठीक है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हो, दक्ष अलग है। ओके दरअसल आप किधर गए थे? बाहर गया था। आई नो बाहर तो गए थे तो मालूम पड़ा, किधर गया था? मेरे अंकल के घर। हाँ मेरे अंकल के घर गया था। तो टाइम नहीं मिला रिपोर्ट लिखने का? मैं अभी अभी आया। ओके ओके बच्चे लोग, अभी ये फाइनल डे है तो आई होप यू कैन गेट इट स्ट्रेट। तो अभी वीडियो देखा, 2 दफा देखा, बातें की, तो अभी ओवरऑल आपने क्या सोचा करने का? ओवरऑल ओके लाइक स्टडीज में। Noise is coming from your side.
My side? Looks like. Okay, go ahead. Okay. So just like स्टडीज में हमको को बोलने का तो हम बोलेंगे कि सारा स्टडीज में हम हार्ड वर्क करेंगे, वीक स्टडीज में एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करूंगा और आई विल बी प्रिपेयर एवरी डे विथ नोट्स, सो आई नो आज क्या पढ़ा और कल क्या पढ़ने वाला है, दैट आई विल वेरी डू। और हमको फाइनल गोल तो है कॉलेज में जाने का, तो हम तो ऐसे करेंगे। तो आपको बोलो तीनों गोल में क्या क्या आप सोचते हैं, क्या कर सकते हैं? श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरे स्टडीज में मैंने ये सोचा कि मैं सब सब्जेक्ट्स में हार्ड वर्क करूंगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी। और मैंने हेल्थ में ये सोचा है कि मैं हर रोज डेली एक्सरसाइज करूंगी और सब टेस्ट को ऑब्जर्व करूंगी और मम्मी को पूछूंगी कि क्या डाला है। और दादा के ज्ञान में मैं फुल संसाधन करूंगी और सब कलम पे फोकस करूंगी। वेरी गुड। तोरल दीदी। हाँ, मैं अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उपयोग करूंगी और हेल्थ में टेस्ट का मैं करूंगी और दादा के ज्ञान में मैं संसाधन पूरे करूंगी। ओके मिस इंडिपेंडेंट। करूंगी और मैं दादा की जो मेडिसिन शैलेश दादा ने दी थी वो मैं हार्ड वर्क करते समय यूज करूंगी उसे ही। और हेल्थ में मैं सूर्य नमस्कार मैं रोज करूंगी आज से। और फिर मुझे दादा के ज्ञान में मेरी नमस्कार विधि रह जाती है हर बार, तो मैं उसे रोज करूंगी आज से। करिश्मा। जय सच्चिदानंद। स्टडीज में मुझे ये गोल है कि मैं तमिल में हार्ड वर्क करूंगी और इसमें मोर मार्क्स लेने के लिए ट्राई करूंगी। और हेल्थ में मुझे ये है कि मैं डेली एक्सरसाइज करना है, मैं नहीं करती हूँ और सुबह जल्दी उठना है मुझे। दादा के ज्ञान में मुझे संसाधन करना है। ओके खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडी में मेरे साइंस वीक सब्जेक्ट है तो उसमें मैं ज्यादा फोकस करूंगी और मेरे हेल्थ में मेरा एक्सरसाइज संडे जब होता है तब एक्सरसाइज छूट जाता है, तो मैं संडे के दिन खास मैं एक्सरसाइज करूंगी। और हेल्थ में मैं दूसरा मैं टेस्ट मम्मी से पूछती नहीं हूँ कि कौन सा डाला है, तो वो मम्मी से पूछूंगी मैं रोज। और मेरे दादा के ज्ञान में ये है कि मुझे 5th कॉलम पे कंसंट्रेशन करना है। दीदी के साथ मेरा कठोर वाणी बोल जाती हूँ मैं और संसाधन हर रोज डेली करना है पूरा। नवनीत दी। जय सच्चिदानंद। स्टडी में मेरा ये गोल है कि मैं सब सब्जेक्ट में हार्ड वर्क करूंगी और रोज 1 लेसन रिमेम्बर करूंगी। हेल्थ में मेरा ये गोल है कि मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है और दादा के ज्ञान में मुझे कंप्लीट संसाधन करने और फर्स्ट कलम पे फोकस करना है। दक्ष। मेरा पढ़ाई में ये नियम है कि मैं डेली हर चैप्टर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर याद करूंगा। और मेरा हेल्थ में ये नियम है कि मैं टेस्ट डेली पूछूंगा कि कौन सा टेस्ट है और मैं आप ऐसे नक्की करेंगे कि एवरीडे में खाते समय टीवी देखने का ऐसे करेंगे? नहीं। तो बंद हो गया टीवी खाने के लिए बाद में? हाँ वेरी नहीं। गुड। नहीं हुआ क्यों?
म- मैं ओके दादा का ज्ञान में बोलो, ये आप तो पुत्र बात करेंगे। मैं दादा मैं फिर मैं टीवी के सामने खाना नहीं खाऊंगा और मैं मम्मी के साथ मेरी कदम नहीं ब्रेक हो ऐसा। क्या मोनिका दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा मेरा पहला गोल ये है कि मुझे सारी स्टडीज में मुझे वर्क हार्ड करना है और उसके साथ मुझे पॉजिटिविटी रखना है, ताकि मुझे मैथ्स में भी कॉन्फिडेंटली मुझे सम्स करना है और 1 आवर तक स्पेंड करना है मैथ्स में। और मेरा सेकेंड गोल ये है कि मुझे एक्सरसाइज हर रोज करनी है। मैं सुबह ब्रेन योगा हर रोज करती हूँ, बट सूर्य नमस्कार रह जाती है, तो मुझे सुबह एक्स्ट्रा टाइम देके उसके साथ जल्दी उठना है और साथ ही वो एक्सरसाइज एवरीडे करना है। और दादा के ज्ञान में मुझे कॉलम 4 में फोकस करना है, और अगर कॉलम 4 टूट गई तो मैं उसके लिए प्रतिक्रमण भी मुझे चूकना नहीं है। और साथ ही मुझे सत्साधन पूरे करने हैं, अगर मैं चूक गई तो उसके साथ प्रतिक्रमण भी मुझे करना है। ओके देखो बच्चे लोग के 2-3 दिन से हम बातें करते हैं, तो किसी ने नहीं बोला कि आई विल वर्क वेरी वेरी हार्ड, किसी ने नहीं बोला। ओके किसी ने नहीं बोला कि आई विल कम टू सत्संग, इफ आई मिस सत्संग आई विल वॉच इट एंड कम प्रिपेयर फॉर सत्संग। इसको हाँ किसी ने नहीं बोला कि आई विल से यस टू पापा मामा। तो ये बेसिक है ना दादा की जैसे बनने का, राइट? किसी ने नहीं बोला कि आई विल डू नो मैटर व्हाट सूर्य नमस्कार एंड सुपर ब्रेन योगा। These are the fundamentals. These are the fundamental things everybody must do. खाने में भी, you know. Okay, दिवक दादा। सच्चिदानंद। मोनिका बेटे, सूर्य नमस्कार कितने करते हो आप नॉर्मली? 3 times। 3 टाइम तो एक टाइम करने का ना, रिड्यूस कर दो ना उसको। टाइम नहीं मिलता तो थोड़े टाइम में जितना हो सके उतना वैसा करने का, 2-1 करो। हाँ, यू कैन ऑलवेज रिड्यूस, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सूर्य नमस्कार ऐसा है कि हमारी वो सारे दिन की एक्टिविटी में वो बहुत हेल्पफुल होता है, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। Okay, can I say one thing, दिवक दादा? यस प्लीज। Okay, देखो सूर्य नमस्कार और हठ योगा वो क्या बनाते हैं मालूम है? अपना बॉडी फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ओके और जो रिजिड होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होता है, उसमें कितना डिफरेंस है किसको मालूम है? और रिजिड होता है तुम विल ब्रेक फास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी विल टेक गुड फोर्सेस। तो ये ध्यान रखना बच्चे लोग कि अभी से वो नहीं करेंगे तो जब बड़ा होगा तो ये बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगा ना, बहुत बहुत प्रॉब्लम। ओके दीपक दादा। अरे बड़ा होंगे तो भी अभी से ही स्टिफ हो जाएगा या नहीं? 2 ही करो ना, 1 राइट एंड 1 लेफ्ट, तो 2 ही करता हूँ बोलो, लेकिन चुकता नहीं हूँ। सुबह ब्रेन योगा करता हूँ तो दैट्स फाइन। सो एटलीस्ट वो मिनिमम करना है। और दीपक दादा एक क्वेश्चन है कि सुपर ब्रेन योगा इन नमस्कार विद अपने सूर्य नमस्कार, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? प्रिया जल्दी जल्दी बोलो, आप नहीं करते मालूम नहीं। खुशी नहीं करते मालूम नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम। नवनीत दीदी हो तो आप तो एक्सरसाइज नहीं करती है। सूर्य नमस्कार में 1 मिनट लगता है, और 10 सुपर ब्रेन योगा अगर
आपसे रोज कर रहे हो तो आप 1 मिनट में कर सकते हो आराम से। 1 मिनट तो नहीं, कम, बहुत कम लगता है। एनीवे, बट चिना एनीबॉडी नोज कि दोनों साथ में करने के कितना टाइम लगता है? नहीं, वो मैं सुबह उठ के करती हूँ, वो शाम नो नो नो, को आई कर- डिडंट आस्क यू दैट कब करते नहीं करते। व्हेन यू डू सूर्य नमस्कार एंड सुपर ब्रेन योगा टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? मुझे 10 मिनट्स लगता है अगर 10 दो मिनट्स सूर्य लगता है। ओके, तो दीपक 10 मिनट्स दिन में नहीं मिल सकता है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस? वो तो एक्चुअली है ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं तो आई विल, शर्म लगती है उनको बोलने के लिए कि बाथरूम जाते हो ना तो बाहर आने में 1 मिनट लगती है ना, उसमें वो सूर्य नमस्कार हो जाता है। ओके, आपका बाथरूम इतना बड़ा नहीं है तो बाहर आके करो, लेकिन यू कैन डू इट, ये बात है। तो इतना ही हो, क्योंकि वो इतना इफेक्टिव है कि बात मत पूछो। ये रखो, आप ये करो। और ये सुपर ब्रेन योगा का तो उसका साइंटिफिक बेनिफिट ही ऐसा है, हमने जो जो डिसाइड किया है ना, अपने आप होता जाएगा। आपको याद करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप याद आता है, आप अपने आप कर लेंगे। वो एक्टिविटी आपकी नेचुरली हो जाएगी, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, देखो मुझे तो इतनी मजा आती है ना, आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। इट डजंट टेक मच टाइम एंड आई गेट द बेनिफिट ऑफ दैट ड्यूरिंग द डे, ऑल डे लॉन्ग। और इसीलिए अपना जो गोल है ना, व्हाट इज अवर फाइनल गोल? दादा's ज्ञान हाँ, पर दादा ज्ञान के फाइनलिटी क्या है? to become like Dada Bhagwan. Yeah, but what will you get out of that? And Happiness. Happiness is the ultimate goal that जो कभी भी जाएगी नहीं हमारी। ये गलतियां करते हैं ना, इसलिए मुंह बिगड़ जाता है, अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लोगों की मुंह की सुनना पड़ता है। लोग बोलते तो अच्छा नहीं लगता ना, डांटते हैं तो। लेकिन ये हैप्पीनेस ऐसी चीज है ना। अच्छा, क्विकली मैं आज अभी ये सब पूछना चाहता हूँ। जस्ट डूइंग नथिंग, यू हैप्पी? का चेहरा ही बताएगा इतना सोचना पड़ता है या नहीं। दक्ष, समझ में नहीं आया। आप खुश है? मैं खुश हूँ, ऐसा होगा? बोलो, इतना टाइम लगता है वही बताता है। खुशी? ओ करिश्मा, नहीं, मोनिका, फ्री बैठना कभी कभार अच्छा लगता है। क्या? ऐसे ही बैठने में थोड़ा आलस। वो अच्छा लगना वो तो गलत बात है। ऐसा नहीं, हमारा हमारा अचीवमेंट ही हमें अंदर से हैप्पीनेस देती है। अचीवमेंट नहीं होती है ना, इसीलिए हम दुखी होते हैं। समझ में आया? हाँ, बिकॉज हैप्पीनेस इज अवर नेचर। जय सच्चिदानंद बोलते हैं ना हम, हाँ, तो लास्ट में आनंद का मतलब क्या है? वो हमारा स्वभाव है। और हमें स्वभाव में रहने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। समझ में आया श्रिया? हाँ। हाँ, ये नहीं समझ में आया नहीं। आर यू हैप्पी? देखो, आप अगर हैप्पी हो गए ना तो राइट अवे आंसर मिलता है। खुशी गमदार तो उसका चेहरा ही बताता है कि वो हैप्पी नहीं है। तो मम्मी बहुत कचकच करती है दीपक दादा, अरे तो नहीं, कोई भी तो कचकच करेगा तो कैसे आप हैप्पी होगा? नहीं, मुझे कोई भी कचकच करे तो हम तो हैप्पी रह सकते हैं। और खुशी समझ में आया? अहमदाबाद को तो विधि दीदी बहुत परेशान करती है, क्या करेगा? अच्छा, एक और भी बात है।
अगर आपने कुछ भी अचीव किया है ना तो उसका भी कुछ आनंद होगा, आपको हैप्पीनेस होगी। लेकिन अगर वो एक किया उसका भी अगर आपको एक एहसास होता है ना, तो उसके लिए आपको एक हैप्पीनेस के यस आई डिड दैट, यस आई हैवंट डन मेनी थिंग्स फॉर व्हिच आई एम सॉरी, वो गलत है, लेकिन आई हैव डन दैट, वो भी नहीं आप महसूस करते हैं। समझ में आया? हाँ ये हो सकता है। देखो ये दीपक दादा प्रहर को पूछो ना, तो मेडल लाता है तो क्या उसको होता है? प्रहर हाँ, अच्छा लगता है। लेकिन उसको सत्संग में आने का अच्छा नहीं लगता है ना। नहीं, वो तो अभी बास्केटबॉल खेल रहा है, तो he'll come except 2 days. कोई भी गेम खेलने दो ना। 5 बजे उठने का होता है। तो क्या हो गया, खेलना हाफ एन जाता है। आवर, हाफ एन आवर क्या, उसको 8 o'clock सो जाना। 2 days only, सो जाते हैं। only 2 days, 2 days a week, Deepak Dada. Then he'll come other days, right, Pra? अभी तो बड़ा लॉन्ग वेकेशन लिया अभी। तो seeing is believing बोलते हैं। No, but If Deepak I Dada, don't- you know, they're compulsion to go to sleep early, na, from home, so they cannot do anything. वो बात सही है, रिपोर्ट नहीं लिखता है ना, लेकिन अगर वो सत्संग Okay. सुनता रहता है तो he should write the report। Okay, बच्चे लोग अरे ठीक है, नहीं अभी लिख पाया, वो भी नहीं लिखता है कि सॉरी आई एम नॉट एबल टू राइट द रिपोर्ट। जैसे वो आउट ऑफ कहीं चले गया ना, दूसरा स्पेस में ऐसे हो गया, तो मैं क्या करूं? दरअसल को तो लिखने का ही नहीं है रिपोर्ट। एनीवे, तो प्रदीप दादा थोड़ी बातें करो, बाद में दीपक दादा वो वीडियो आया है ना दादा का, वो दिखाने का है। अच्छा, I posted, okay, so you can prepare that. प्रदीप दादा थोड़ी बातें करो, बाद में दादा का वीडियो देखेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। आप सभी की भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप कभी हार्ड वर्क कर सकते हैं, हम गोल को कभी अचीव कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हार्ड वर्क किसको कहते हैं और कैसे किया जाता है। आप लोगों का जो भावना तो बहुत अच्छी है और होगा भी, लेकिन उनकी समझ होनी चाहिए। हमारे अंतर में है कि मुझे करना है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस वाला कौन सा पार्ट है और क्या क्या चीज है उसको हमें हटानी होगी। जैसे कि दादा भगवान को एक लक्ष्य था उनका कि मुझे जो रास्ते में मिले उनको, रास्ते पे चलने वाले आदमी को मुझे मोक्ष देना है, फिर बाद में मैं जाऊंगा। वो तपस्या करते करते इस काल में उनका जन्म हुआ। तो इस जन्म की स्टोरी ऐसी है कि उन्हें दुनिया को देखा कि दुनिया कैसे जीती है और कैसे चल रही है, लेकिन उन्होंने नई राह चुनी कि जिस रास्ते पे लोग चलते हैं उससे मुझे उल्टा चलना है। आपको समझ में आया? इसी तरह क्या दादा के जीवन में से हमें जो हार्ड वर्क की बात है, जो गोल को प्राप्त करना है, हमें सिंसियर होना है, तो इसमें क्या काम आएगा ये कि हम हमारे मन, हमारी बुद्धि और लोगों जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, जो भी है, कुछ रिलेटिव्स है, वो सब बताते हैं, लोग करते, तो उसी तरह हमारा जीवन जाता है कि हमारा जो गोल है उसमें हम सिंसियर है। और चाहे हम जीते हैं, चलते हैं उस रास्ते पे, तो अंदर खटकारा होता है। और फिर जब घर में आते हैं तो फिर बाद में हम खुद को बोलते हैं कि चाहे अपने 1 घंटा टीवी में गवाया, 1 घंटे घूमने गया, होटल में खाना खाने के लिए गए हम, लेकिन अभी मुझे 2 घंटा का जो मेरा काम है वो मुझे अभी करना है, बाद में सोना है। आपके पास ऐसा प्लानिंग है? हार्ड वर्क कभी होता है, वो आप मुझे बताओ कि हार्ड वर्क आदमी तभी कर सकता है कि उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि मेरा जीवन, मेरा सब कुछ जो कुछ भी है वो यही है। वो जब उनकी समझ उनको बैठ जाती है, उनकी समझ पक्की हो जाती है,
तो फिर दिन रात खाना पीना सोना, ये हर चीजों को उसको हटाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, और नेचर भी उनको हेल्प करती है। लेकिन ये समझ की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक कोई भी आदमी हो, शक्ति बहुत है अंदर, खुद भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन एक हमारा लक्ष्य तय करना होता है और पूरा पहला समझने की जरूरत है, और फिर बाद में देखो आप इतनी शक्ति आप में प्रकट होगी कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हार्ड वर्क करना तो हर एक इंसान का ये फर्ज होता है और उनको करना ही चाहिए, लेकिन क्यों, ऐसे हमें समझना होगा। अगर आज आप मुझे पूछे, अगर जो दादा भगवान बोले कि आपको ये रास्ते पे चलने से आपको ऐसा ऐसा अनुभव होगा, तो समझ में आवे नहीं दादा मुझे शक्ति दो, मुझे यही करना है, जो आपने बताया वही करना है, बस फिनिश। हम गिर जाएंगे, चुक जाएंगे, सब कुछ होगा, बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी आएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य चुकना नहीं चाहिए, और लक्ष्य की बहुत बड़ी बात होती है। तो आप धीरे धीरे ये सभी कठिनाइयों से पार करके स्ट्रांग होते जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। और मैं दूसरा ये आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप सोचो कि मेरा जीवन किस लिए है, मुझे कैसे जीवन जीना है। मैं इंसान हूँ, इतनी सारी दुनिया में जितने इंसान है, इसमें से मुझे जो जरूरत सुविधा है वो मेरे पास प्राप्त है आप लोगों के पास? खाना पीना सोना कपड़ा सब है आपके पास? बोलो ना। तो किस बात की कमी है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हमारे ध्येय की ओर गोल की ओर जाने नहीं देती है? फिर भी डरो मत, उसका सॉल्यूशन लाना ही है एट एनी कॉस्ट। ये आपका पक्का निश्चय जब भी होगा तो देवी देवता है, खुद की शक्ति, दादा की कृपा, सब चारों ओर से आपको धीरे धीरे आपको अनुभव में आता जाएगा। लेकिन ये सब दिल का मामला है। किसका मामला है? शब्द तो बहुत यहाँ से निकलते हैं, उसकी कीमत नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सच्चे दिल से ये करना होता है। कैसे करना होता है? सच्चे दिल से। सच्चा दिल क्या होता होगा? मैं जो कुछ भी गलत होगा उससे नुकसान मुझे है, और मेरी वजह से पूरी दुनिया को, परिवार को नुकसान होगा, मुझे ये काम नहीं करना है, बस फिनिश। इसीलिए दादा भगवान जब भी छोटे थे तब उनका एक ही गोल रहता था, जो मुझे कोई मिला तो उनको फायदा होना चाहिए, उनको सुख होना चाहिए, तो वो ऐसे चलते ही रहे इस रास्ते में। तो मैं आपको कहता हूँ कि हम सब दादा के जीवन में से कुछ तो सीखना पड़ेगा ना हम सबको, कि नहीं सीखना पड़ेगा? मैं आपको ये पूछता हूँ कि पढ़ाई में आपको कौन तकलीफ करता है? योगा करने में कौन तकलीफ करता है? ना बोलने वाला है कौन? उसको ढूंढ निकालो। मुझे आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी भावना अच्छी है, आप सिंसियर है, लेकिन मुझे वो जो चोर है जो मेरे जीवन में मुझे भटकाता है, मेरे ध्येय से मुझे दूसरे रास्ते पे ले जाता है, तो उसको हमें ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? ढूंढना चाहिए। ढूंढना चाहिए। कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेगा इस चोर को? कि उनको हृदय से होगा कि ये सब उनकी बातों सुनने से, ये लोगों से ऐसा ऐसा करने से आज मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरा गोल मुझे प्राप्त नहीं होगा, मुझे नुकसानी होगी। तो इंसान वही होता है जो खुद को नुकसान होवे ऐसा काम करे, वो नहीं कर सकता। नुकसान हो ऐसा कोई काम करता है इंसान? बोलो। नहीं। आपको बुखार आए तो अच्छा लगेगा? नहीं। आप गिर जाओगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। आप फेल हो जाओगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। कोई हमारी और बुरी बातें करेगा तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो हमें परफेक्ट होना है। एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग एंड सत्संग। मैं अभी ये यहाँ से मैं मुक्त होता हूँ, मिस रजा लेता हूँ,
लेकिन उनके बारे में कुछ दीपक आनंद जी साहब से मैं बोलूंगा कि उसमें आपको कुछ बात बोलो 2-3। Because you want to add something or we want to see video? हाँ, वीडियो देखेंगे अभी Okay. आगे चलो बाद बच्चे में लोग करेंगे का हाँ, प्रदीप आनंद जी हैं? बाद में करेंगे वो वीडियो देखने का। is pay attention. आंखों और कान खुला रखना। अक्रम विज्ञानी दादाश्री यानी अंबालाल मूलजी भाई पटेल पेशे से वे एक सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे। ज्ञान होने के बाद भी उनकी पार्टनरशिप वाली इस फर्म का काम जारी रहा। ज्ञानी व्यवहार में कैसे बरतते हैं, इसका एक किस्सा सुनने को मिला महात्मा गुरुदयाल जी को। दादाश्री की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले एक कर्मचारी रमेश से। गांव है सोखड़ा, वहाँ अपना एक पहचान वाला है और वो नहीं जानता कि मैं दादाजी के पास जाता हूँ और उसको ये नहीं पता कि दादाजी क्या है। वो दादाजी के पास सर्विस करता था। यह बात उन दिनों की है जब दादाश्री की कंपनी को एलिफेंटा समुद्र तट पर जेटी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। काम के लिए कभी कभी उन्हें बड़ौदा से साइट पर जाना पड़ता था और कभी रात को रुकना भी पड़ता था। दादाश्री की ऐसी ही एक साइट विजिट के दौरान एक बार साइट पर काम करने वाले सभी लोग दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद खाना खाकर जल्दी ही गहरी नींद में सो गए थे। दादाश्री भी आराम कर रहे थे। तभी उन्होंने रमेश को आते देखा। उसे देखते ही दादाश्री ने पूछा, रमेश, खाना खा लिया? रमेश ने कहा, नहीं सेठ जी, दोपहर से जेटी पर काम कर रहा था, बस अभी ही नाव से लौटा हूं किनारे। दादाजी ने पूछा, तमें जमीली था? वो बोला, वो कहता मैं तो सेठ ही बोलता था, हमको क्या पता दादा क्या नहीं, हम तो सेठ बोलते थे कि सेठ जी मैं तो अभी आया हूँ। तब तक तो रसोइया भी सो चुका था। दादाश्री तुरंत खड़े हो गए और रमेश से कहा, चल मैं तेरे लिए खिचड़ी बना देता हूं। रमेश को जवाब दे उससे पहले तो दादाश्री ने खुद ही स्टोव जलाकर खिचड़ी बनाने रख दी। रमेश तो यह देखकर बिल्कुल दंग रह गया। सेठ जी मेरे लिए खिचड़ी बना रहे हैं? अपना आराम छोड़कर कभी किसी सेठ ने अपने नौकर के लिए ऐसा किया होगा क्या? फिर दादाजी ने स्टोव गर्म किया, उसको खिचड़ी बना के दी। भूखे नहीं, दादा ने बनाई, दादाजी ने बनाई कि भूखे नहीं सोने का। दादाजी ने उसको खिचड़ी बना के खिलाई। रमेश के लिए वे सिर्फ सेठ जी थे, लेकिन गुरुदयाल जी जैसे कितने ही लोगों के लिए तो वे महान ज्ञानी थे। जिन दादाश्री के लिए भोजन बनाने की सेवा पाकर लोग धन्य धन्य हो जाते थे, उन्हीं दादाश्री का अपने कर्मचारी के प्रति ऐसा व्यवहार। अध्यात्म के शिखर पर पहुंचे दादाश्री का व्यवहार में इतना लघुत्तम भाव, इतनी करुणा और प्रेम, ऐसा तो कोई असाधारण मनुष्य ही कर सकता है। ओके, क्विकली, क्या उसमें से आपने ग्रहण किया? खुशी, अहमदाबाद।
हाँ, मैंने ये ग्रहण किया कि हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए। कोई ऐसे काम कर रहा होता है और भूखा रहता है तो उसे भी हमें मदद करनी चाहिए। ये श्रेया, हमको लघुतम भाव में रहना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। तोरल, मेरे को भी सेम ओपिनियन था कि कोई भी और सबकी हेल्प करनी चाहिए। चिनाय, हमें किसी को भी वो हमसे छोटा है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। हम सभी को इक्वली ट्रीट करके लघुतम में रहकर हेल्प करनी चाहिए। very good. Okay, anybody else? Oh, दीपक दादा, बोलो। देव, ज्ञानी देव, एक मिनट, दीपक दादा, देव। जय सच्चिदानंद। हमें मतलब किसी भी मतलब वो व्यक्ति कैसा भी हो, हमें हमारे और उसके बीच में इक्वली रहना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ओके, दीपक दादा। ओ एक मिनट, दक्ष बोलो। हमें किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं देना चाहिए। आप तो टीवी को खिलाते हैं, हाँ? दीपक दादा। ये इसमें बताया कि ज्ञानी पुरुष असाधारण असामान्य मनुष्य होते हैं। दीपकान जी, ज्ञानी बोलो। पुरुष असाधारण असामान्य पुरुष होते हैं। हम तो साधारण है कि असाधारण है? बोलते नहीं है। साधारण, आप साधारण हो, सामान्य है। असाधारण, दादा भगवान ने अपने लिए, दादा भगवान के लिए बताया कि वे असामान्य असाधारण पुरुष होते हैं। बोलो। इसीलिए हमें इतने ऐसे में बहुत सब कुछ दे दिया। अभी ख्याल में आया। दीपक कुछ बोलने का है? What is the master key of success story? आपकी स्टोरी सक्सेसफुल है, नवनिधि की बात नहीं है। नवनिधि की स्टोरी सक्सेसफुल है, वो तो बहुत अच्छा है उसका। अभी उसके लिए सक्सेस स्टोरी करने के लिए क्या बताया है? इतना देर क्यों लगता है? फटाफट बोलना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज व्हाट? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने को आपको कंटाला आता है, आलस आती है? नहीं। बोलो। You must enjoy your hard work. When you start enjoying your hard work, you will never leave that hard work. ऐसा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, प्रदीप दादा, एक मिनट। आप वीडियो में आपने क्या देखा? दूसरों का अपने पास जो भी काम करते हैं, आसपास में रहते हैं, तो उनका ख्याल रखना, और दूसरा कभी भी खुद के लिए सुख के लिए सुनो, सोचना नहीं, लेकिन दूसरे को कैसे सुख मिले उनकी हमेशा ख्याल रखना। मतलब परोपकार जीवन था उनका। फिर भी वो, उनके चेहरे में ऐसा कभी नहीं था कि मैंने उनको हेल्प किया। ये संस्कार होते हैं, वो समझ होती है।
ओके बच्चे लोग, ये जरा ये सुनना, लास्ट पार्ट 1-2 मिनट का ही है, तो ये आप तो पूछो रहे क्या बोला है वो जरा देखने का, और दूसरा सोचने का है कि आप सब बड़े हो गए तो मम्मी को कब ऐसे खाने खिलाया, सैटरडे संडे को, और क्या मम्मी को बोला मम्मी आज तुम बैठो हम आपको ये पानी देगा ये देगा, वो जरा सोचना। ओके, स्पेशली चिनाई, वो संडे क्या करते हैं अब, वो मम्मी को, वो बीमार मम्मी होती है तभी हेल्प करते हैं ना मम्मी को। नहीं ओके, संडे करते हैं। वो करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चोरल आपको खाना बनाना आता है? नहीं। क्यों? थोड़ा थोड़ा भी नहीं आता है तो सीखने का, मम्मी को करके खिलाने का है। ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। अभी प्रदीप दादा हम पद सुनेंगे।